अब चक्री जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। सर मॉर्निंग टू यू, शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। सबसे पहले तो इनफैक्ट आप जुड़े उससे पहले भी हम यही बात कर रहे थे कि जो करेक्शन है मार्केट में वो थोड़ी बहुत अंडर द रेडार हो रही है। तो कुछ एक स्टॉक्स में काफ़ी करेक्शन हुई है, कुछ एक इंडेक्सेस में हुई है। निफ्टी और सेंसेक्स में शायद उतनी नहीं हुई है। फ्रंट लाइन को अगर हम देखें 5-6% का ड्रॉप है, बट जो सेल ऑफ है उसे आप एक जेन्युइन करेक्शन मान रहे हैं या फिर इट्स मोर और लेस हर्ड मेंटालिटी काइंड ऑफ अ थिंग? क्योंकि मार्केट इतना ऊपर था और नर्वसनेस है, तो एक ने बेचा तो दूसरा भी बेच रहा है, थिंकिंग की और गिरेगा। Namaskar. I think you raised a good point. We to have situation. Basically, nervousness है market में because when the nation's biggest IPO falls 40%, then other stocks recently which have gone up a lot will also correct. And because if you look at the market overall, is trading at probably about a 10-15% premium to the long-term average. But that average is kind of justified because you've had COVID, which is a 1 in 100-year situation, and therefore the earnings rebound will be greater than that normal year-to-year growth in earnings. Some stocks have gone up tremendously a lot, valuations have gone up a lot, and there the corrections have seen are about 15, 20, 25%. But if you look at autos, banks, these stocks have not gone up that much. So I think overall, the market will balance out. And individual stocks have corrected, but I think overall, the market will balance out. राइट बिल्कुल मॉर्निंग मिस्टर चक्री। अब आप अगर हम बहुत स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी जानना चाहें व्यूअर्स के लिए कि क्या कुछ करना चाहिए, क्योंकि हम इस करेक्शन में अगर सेक्टर वाइज स्प्लिट करें यहाँ पर तो मेटल में आप देखें एक अच्छी खासी करेक्शन आ चुकी है। आप हिंदुस्तान कॉपर की बात करें, एनएमडीसी, सेल, जेएसपीएल या कोल इंडिया, सब 25 से 40% तक की करेक्शन दिखा चुके हैं अपने 52 वीक हाई से। आपका क्या व्यू है मेटल स्पेस में क्या होना चाहिए, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर एक डायरेक्शन भी अपने व्यूअर्स को दे पाए कि उनके लिए क्या है आगे, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड इन स्टॉक एंड सेक्टर स्पेसिफिक। अगर आप मेटल्स, सीमेंट, एफएमसीजी, all these sectors देखें तो metals earnings have revived more than 200% over the last 2 years. They've paid down debt, and therefore their balance sheets are stronger, and the multiples are midpoint multiples. So ज़्यादा expensive तो नहीं है ये stocks, and they've corrected in anticipation of peak cycle multiples and all that. But now I think at 5.5 times Hindalco, at about 6 times EV/EBITDA Tata Steel, and about 4 times Jindal Steel and Power are very inexpensive valuations for the kind of earnings growth that we will see. So on the other hand, banks have not really rallied at all. Then if you look at autos, not really rallied at all. Cement, the valuations are still very in line because the cement cycle is going to pick up. So I think the correction for many of the sectors are like metals is largely over. मिस्टर चक्रीपाल, तो बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा लग रहा है आपसे आज हिंदी में बात करके, क्योंकि मैंने जब भी आपके इंटरव्यूज़ देखे तो टिपिकली आप इंग्लिश में बोलते रहे, लेकिन आज हिंदी में बात करके अच्छा से कनेक्ट हम आपसे कर पा रहे हैं। एक चीज़ मेरे को आपसे ये पता करनी थी कि अब सब लोग ये कह रहे हैं कि बैंकिंग के दिन थोड़े अच्छे आ सकते हैं। हम डेरिवेटिव डाटास को भी चेक करते हैं बैक टू बैक, तो उसमें भी ऐसा लगता है कि हाँ शायद बेस बन जाएगा। बैंकिंग एक फ्लेवर हो सकता है सर, क्योंकि वैल्यूएशन इरोजन तो यहाँ पे हुआ है, 7% इंडेक्स टूटा है अपना ये रिसेंट मार्केट की गिरावट में। हाँ, सही बात है। If you look at banking basically credit growth पे dependent है, and credit growth still remains to be very weak. Credit growth is only about 6%, versus pre-pandemic credit growth was about 25-30%. So as the economy opens up and companies and consumers start spending, credit growth will pick up, and along with that, the banking sector will improve. So I think right now banking is a good sector to start picking stocks. सर एक बार फार्मा स्टॉक्स की बात करते हैं। फार्मा में क्योंकि अब 2 तरीके हैं इसे देखने के। एक तो फंडामेंटली हमने देखा है एक बहुत अच्छी स्टोरी बिल्डअप हो रही थी, पर इसके बावजूद कई सारे स्टॉक्स हैं। जैसे आप ऑर्बिंदो को देखिए तो 40% से ज़्यादा ड्रॉप हो चुका है। आप स्टॉक्स लाइक स्ट्राइड्स फार्मा को देखिए, नैटको, ग्लेनमार्क, ल्यूपिन कल की सेलिंग के साथ 30-40% के बीच में ड्रॉप हो चुके हैं ये स्टॉक्स। इन पर आपका व्यू क्या है?
फार्मा तो स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरी है एंड यहाँ पे जो एफडीए का और न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट का इश्यूज हैं वो largely in done, and if you look at the stocks themselves have not done much in the last 12 months. The stocks have underperformed the index and the valuations are in line. New product development is fairly good for companies like Sun, like Lupin, and in fact even Cipla for that matter. So I think there it is more stock specific, and the valuations are in their favor. Even Glenmark, the stock has underperformed, and after its recent IPO, and I think now it's looking good. चक्री, साथ ही दो स्टॉक्स जिन्होंने कल बाजार में सेंटिमेंटली काफ़ी इम्पैक्ट किया, उस पर मैं आपकी राय चाहूँगा। एक तो रिलायंस, ये जो अरामको की डील, लेट्स नॉट कॉल इट विड्रॉल, लेकिन क्योंकि रीएवैल्यूएट हो रही है, उस पर आपका व्यू क्या है? बिकॉज मार्केट रिएक्टेड प्रेटी नेगेटिवली। एंड सेकेंड इज पेटीएम की लिस्टिंग, कल भी ये ड्रॉप हुआ, 40% ऑलरेडी ड्रॉप हो चुका है इशू प्राइस से। आपका क्या व्यू है दोनों पर? I think Paytm पे it's largely down 40% और यहाँ पे शायद stock settle हो जाएगा, because around the 1200-7-8 times sales is the kind of a number where the stock should find a bottom, because 70% of the business तो payments business है जो low margin का business है, so it will have to have a lower multiple than other online companies, and it's trading now I think after the fall probably at about 7-8 times sales, which is kind of the right number. So around the 1200-1250 mark, I think you will find a bottom. As far as Reliance Industries, I think is just another blip. Their overall story is intact. Oil to chemicals is a very valuable business. It trades at hardly 6 times, and the other businesses continue to retail, telecom, and the technology businesses are growing very fast. So I think Reliance is a very valuable stock, and the valuations are also correct at this point. आप मिस्टर चक्रे यहाँ इसे प्लस करने की सलाह देते हैं? रिलायंस एक अच्छा वैल्यूएशन वाइज आपको अब लग रहा है, अच्छी करेक्शन आ चुकी है? I think Reliance also has done very well. I think Aramco deal we should not really focus on too much. There can always be another deal. I think it's a good point to start looking at Reliance Industries. एक और चीज़, क्योंकि आपने पेटीएम की बात करी, तो ज़रूरी है इस वक्त न्यू लिस्टिंग की बात करना या फिर रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक्स की बात करना? वहाँ पे भी अच्छा खासा करेक्शन हो गया। इनफैक्ट आप अगर मोबिक्विक की बात करें, उसका ग्रे मार्केट में तो ऑलरेडी इनफैक्ट वो डिले ही हो गया 6 मंथ्स के लिए और आगे चला गया आईपीओ। ऐसे केस में जो रिसेंटली लिस्टेड आईपीओज हैं, जोमैटो हो या फिर दूसरे, अब लेटेंट व्यू की आज लिस्टिंग होनी है, आप कैसे देख रहे हैं इस मार्केट को? इन पर क्या इम्पैक्ट होगा? Yeah, देखिए different stocks obviously का margin अलग होता है, and in the case of Paytm is a low 70% of their business the low margin business है, लेकिन in the case of Latent it's a very high margin business, very high gross margin software company, so it should see a fairly good listing, but शायद वो euphoria तो नहीं होगा, but I think you will see a very good listing in Latent. And as far as Paytm is concerned, as the business moves from payments to their merchants and customers, business of facilitating borrowing, mutual funds, gold lending through their merchants business, their margins will improve, and that is what is the big picture over the longer term. मैं थोड़ा ना ग्रीडी हो रहा हूँ आपसे क्वेश्चन पूछते समय, और जितना आप क्रिस्टल क्लियर होके बता रहे हैं ना, मेरा भी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर सवाल है, क्या खरीदना है और क्या नहीं खरीदना है? आप बस वो बता दीजिए, क्या खरीदना है और क्या नहीं खरीदना है? Yeah, अगर खरीदना, I think IT as a sector looks very good. Even Latent when they list, I think is a quite good sector to look at. Say part of the same sector. Pharma तो is already a very cheap sector, and banking में बहुत value है. और क्या नहीं खरीदना सर? Yes sir. बिल्कुल। सर साथ ही ये भी बताइए, अभी पेटीएम पर तो जैसे आपने कहा कि शायद 1200 के आसपास ये सेटल हो जाएगा, लेकिन जो रिसेंटली लिस्टेड कई स्टॉक्स हैं उसमें हमने देखा अच्छा खासा, पहले तो मोमेंटम अच्छा खासा था, फ्रॉथ या आई मीन व्हाटएवर वी मे कॉल इट, बट देयर वाज लॉट ऑफ एक्साइटमेंट। नाउ स्टॉक्स लाइक जोमैटो या फिर सफायर फूड्स में कल हमने काफ़ी बिकवाली का प्रेशर देखा था, या फिर पॉलिसी बाज़ार, इस तरह के जो स्टॉक्स हैं, या फिर जो कल कंक्लूड हुआ है गो फैशन का आईपीओ,
इन जनरल आपको लगता है कि मार्केट थोड़ा सा वैल्यूएशंस को एडजस्ट करना चाहता है जो रिसेंटली लिस्टेड कंपनीज हैं, खासकर स्टार्टअप स्पेस से वहाँ पर? बोथ स्टार्टअप कंपनीज और लॉन्ग टर्म कंपनीज दोनों में एक रीसेट हो रहा है मार्केट में, बिकॉज ओवरऑल मार्केट एक 10-15% प्रीमियम पे है, एंड इंडिविजुअल स्टॉक्स जैसे जोमेटो और पेटीएम तो उनका प्रीमियम थोड़ा ज्यादा था, एंड नाउ दैट इज करेक्टिंग इन स्पेस, एंड आई थिंक इट्स अ पार्ट ऑफ अ हेल्थी करेक्शन व्हिच इज नेसेसरी फॉर एवरी मार्केट, एंड but that should not diminish the appetite for IPOs. As they say, you know, each individual company you have to pick and choose, and they're all valuable companies. It's just a question of valuation. मिस्टर चक्री, एक आखिरी क्वेश्चन आपसे। कल ना भारतीय एयरटेल ने टैरिफ बढ़ाए हैं प्रीपेड के, 25% तक टैरिफ बढ़ाया है कल, उसकी वजह से अच्छा मूवमेंट भी आया। अब दो ही कंपनी सर्विस प्रोवाइडर, बेसिकली बड़ी कंपनीज, तो एक तो रिलायंस है, दूसरा भारतीय एयरटेल है। आज काफ़ी रिपोर्ट्स भी आई हैं भारतीय एयरटेल को लेकर, कह रहे हैं 850 हो जाएगा। आपका भी ये व्यू पॉइंट है? 850, 900 हो सकता है, ट्रिपल डिजिट में भी चला जाए? 850, 900, 1000 भी जा सकता है, बिकॉज इट्स अ वेरी वैल्यूबल कंपनी। अभी आरपू बढ़ेगा ही फ्रॉम 200, आई थिंक द फर्स्ट शॉर्ट स्टेप विल बी 200 rupees, then 300 rupees ARPU is also on the cards. As that happens, the balance sheet stronger ho jayega, the company's financials will look stronger, and market share is anyway they are strong. So I think, and these are very necessary moves, and it's time that logically that you will see that improvement, and Bharti Airtel at this point looks very good. ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज चक्री, आपने आप समय दिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और हिंदी में बातचीत करके तो और अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।